favorable outcomes divided by total possible outcomes. So here you are sitting 18 people in front of me. Out of those 18, 7 are girls, 11 are boys. If I will say I am going to choose a boy from the class, what is the probability that it will be a boy? 11 over 18. The probability of a boy is 11 over 18 and the probability of a girl is 7 over 18. So I told you, whenever we will conduct an experiment, the probabilities of all the possible outcomes add up to 1. So this is clear example is here. You can see 11 over 18 is the probability of a boy from your class. 7 over 18 is the probability of a girl from your class. So when you will add these both, you will get 18 over 18 and the 18 over 18 will give you 1. So the probability add up to 1. All the probabilities of a single event add up to 1. Similarly, in case of a coin, the probability of head is 1 over 2 plus probability of tail is 1 over 2. 1 over 2 and 1 over 2 is equal to 1. Similarly, there are 6 possible outcomes in case of rolling a die. So what is the probability of 1 over 1? 1 over 6. What is the probability of 2? 1 over 6. Probability of 3 is 1 over 6. Probability of 4 is 1 over 6. Probability of 5 is 1 over 6. Probability of 6 is 1 over 6. So it will give you 6 over 6 is equal to 1. Again, the probabilities add up to 1. So the sum of all the probabilities of a single event adds up to 1. It will not exceed from 1. It will not be less than 1. It is exactly always equal to 1. So please keep it in your mind. It will be very helpful in future whenever you will be solving the questions regarding the probability. So these are the basic concepts of probability. Now we are going to do some probability diagrams. So two probability diagrams are there. One is possibility diagram and the other is tree diagram. Possibility diagram is a possibility diagram. Whenever we are conducting any experiment about the probability, उसमें क्या हुआ करेगा? In case of any experiment about the probability, सारी possibilities को हमने possibility diagram में शो करवा देना है. वही possibilities हम tree diagram में शो करवा देते हैं. And when it will be a table like this, suppose we are tossing a coin 2 times. ठीक है, हमने क्या करना है? एक कॉइन है, उसको 2 टाइम्स हमने टॉस करना है. एक दफ़ा हेड और टेल आना है, दूसरे पे भी हेड और टेल आएगा. ठीक है, तो अब हम सारी पॉसिबिलिटी, इसको पॉसिबिलिटी डायग्राम बोलते हैं जी. जब हम इसको एक कॉइन को टॉस करेंगे उस पर भी हेड आएगा, दूसरे को टॉस करें उस पर भी हेड आ जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ये है जो पॉसिबिलिटी डायग्राम हमें दिखा रही है. सपोज़ एक को हमने फेंका तो हमें हेड मिला, दूसरे को फेंका टेल मिली. ठीक है, सो एच एंड टी इज़ दी अदर पॉसिबिलिटी. यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि हमारे पास पहले पे टी आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए. टेल, टी मीन्स टेल, और दोनों पे टेल और टेल भी आ सकती है. सो दीज आर दी ऑल पॉसिबिलिटीज़ विच कुड बी देयर व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स. ठीक है, अब इसको वो थोड़ा सा आगे चेंज करके भी कह सकता है आपको. वो कहेगा जी मैं एक कॉइन टॉस किया और एक मैंने क्या किया, उसको डाई को रोल कर दिया. ठीक है, व्हेन यू विल रोल द डाई, व्हाट विल यू गेट एट द डाई? You will get 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. And when you will toss the coin, you will get head and tail. So when you will show all these in the table, तो आपको क्या मिलेगा? So it is suppose our first and it is our second इवेंट. ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट में हेड आ रहा है तो उसके साथ हमारे डाइस पे 1 आ जाएगा. अगर इधर हमारे पास हेड आ रहा है तो 2 आएगा. हेड एंड 3, हेड एंड 4, एच एंड 5, एच एंड 6. सिमिलरली टी एंड 1,
T and 2, T and 3, T and 4, T and 5, T and 6. So in this way we will be making the पॉसिबिलिटी डायग्राम. सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं उसके अंदर. ठीक है. अब पॉसिबिलिटी डायग्राम में क्या होता है, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, 12. So what is the probability that you will get an even number and a head? So the numbers which are containing even number and a head are these. So there are 3 possible outcomes which are containing head with even number. So it will be 3 over 12. What is the probability that you will get a prime number and tail? Prime number and tail. 3 over 12 again. So in this way, when you will draw the T diagram or possibility diagram, उसी में से उसने आपसे क्वेश्चन पूछना होता है. ठीक है. सो इट्स करेक्शन विद इट्स ड्राइंग विद प्रिसीजन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी वहाँ पे और आपका सारा क्वेश्चन आगे जो आने वाला है उसका सत्यानाश मिलने वाला है. ठीक है. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू विल बी completing the possibility diagram. It is not always you have to draw the whole possibility diagram in your question paper. आपको वो हो सकता है कुछ उसने वैल्यूज़ वहाँ पे डाल दी हों, कुछ इनकम्प्लीट दी हों. समटाइम्स अगर खुद ड्रॉ करने के लिए आपको वो कहेगा पॉसिबिलिटी डायग्राम तो उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे. ठीक है. अदरवाइज़ यू विल गेट अ शॉर्ट वर्जन ऑफ इट. अच्छा, इसी तरह अगर हम इसी 2 दफ़ा एक कॉइन को टॉस करने जा रहे हैं एंड वी विल शो इट इन अ टी डायग्राम, तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम पहली दफ़ा कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगी. ठीक है. तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 एंड टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2. सो इट इज़ द फर्स्ट थ्रो. अब जब हम सेकंड थ्रो करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब हमारे पास फर्स्ट थ्रो में हेड के साथ हेड आ चुका है तो हेड के साथ दोबारा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकती है. ठीक है. सो इट इज़ आवर सेकंड थ्रो. अब सेकंड थ्रो में एक और पॉसिबिलिटी भी है कि पहले अगर फर्स्ट थ्रो में हमारे पास टेल आई थी तो उस टेल के साथ दूसरी थ्रो में हमारे पास हेड या टेल आ सकते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल विल रिमेन एज इट इज़ 1/2, 1/2 एंड 1/2. नाउ ही विल आस्क यू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट. मतलब वो कह देगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल यू विल गेट बोथ हेड्स. ठीक है. जब इस तरह वो प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, तो हमने क्या करना होता है, उन प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देना होता है. प्रोबेबिलिटी को मतलब हेड और हेड हमें कहाँ नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे और यहाँ पे नज़र आ रहा है. सो वी विल लिंक दीज बोथ एंड वी विल मल्टीप्लाई दीज बोथ प्रोबेबिलिटीज़ व्हेन वी आर आस्क्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो क्या करेंगे हम इसमें, हम लिखेंगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड 1/2 एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड हेड 1/2. सो इट विल बिकम 1/4. ठीक है. अब वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट दी सेम वैल्यू, यानी कि आपको हेड मिले या टेल मिले, सेम आउटकम. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी यू आर गोइंग टू गेट दी सेम आउटकम. ठीक है. अब देखें, अब सेम आउटकम के में क्या होगा कि हमारे पास या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे. तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम आउटकम इज़ इक्वल टू, अब देखें दोनों अगर हेड आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड टेल. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड इज़ 1/4 और टेल की 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 ही आनी है. सो इट विल बिकम 2/4. इट इज़ इक्वल टू 1/2. वेरी सिंपल. So probability is very easy. If you will pay attention and do see little practice, you will be able to get full marks in your probability question. अच्छा जी, उसके बाद इसमें probability में एक होती है probability tree की बात कर रहा हूँ मैं, with replacement and without replacement. Suppose we have 2 bags and these bags are containing the balls of
रेड कलर बॉल्स, एंड इसमें दूसरी हमारे पास क्या लेते हैं हम, ब्लैक हैं जी, ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे बैग में और उसमें हम कर लेते हैं 3 ऑरेंज बॉल्स या येलो बॉल्स। ठीक है, और साथ हम कर लेते हैं ये वाली। सो 2 bags आर देयर, बैग ए एंड बैग बी, बैग ए एंड बैग बी। अब ये एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपको। अब आपने क्या करना है, 2 balls यू आर गोइंग टू पिक फ्राम बोथ बैग ए, 1 फ्राम बैग ए और 1 फ्राम बैग बी। ठीक है, अब पहली बॉल हम जो चूज़ करेंगे, लेट्स इट इज़ फ्राम बैग ए, तो हम बैग ए से जब बॉल चूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या कलर है, रेड है और ब्लैक है जी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, 3/5। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल निकाल रहे हैं हम उसको वापस प्लेस कर रहे हैं जी। ठीक है, ये सेम एक बैग के साथ भी हो सकता है, दोनों बैग्स के साथ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरे बैग में रेड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं ना, इनका सम हमेशा 1 होगा। समटाइम्स वो एक प्रोबेबिलिटी को यहाँ छोड़ देगा, मिस की होगी, और वो फिल इन दी ब्लैंक आपको आएगा कि इसको फिल करो, यहाँ क्या आएगा। इसको आप क्या करेंगे, आपको पता है बोथ प्रोबेबिलिटी सम इज़ 1, तो आपने जो एक गिवन होगी उसको 1 में से माइनस करेंगे, दूसरी आ जाएगी। ठीक है, या सिंपल वे एक होता है इसका, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 3 और 5 का, 2। जो डिफरेंस है उसको हम न्यूमिनेटर में शो करवा देंगे और डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज़। ठीक है, सो इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू राइट द अदर प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, ये हमने क्या किया, बैग ए से बॉल को निकाला है। नाउ वी आर गोइंग टू पिक अ बॉल फ्रॉम बैग बी। ठीक है, अब बैग बी में से कौन कौन सी बॉल्स हैं हमारे पास, हमारे पास येलो है और ग्रीन है, येलो एंड ग्रीन। अब आप देखिए यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा अगली ब्रांच में, क्योंकि वी हैव डिफरेंट बैग्स एंड डिफरेंट कलर्स आर देयर। ठीक है, तो अब क्या होगा, बैग ए में बी में से येलो बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाउ मैनी येलोज आर देयर, 3/7। एंड देखें, अब बगैर देखें हम वहाँ पे, अगर सपोज उसने यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक छोड़ी होती तो हम क्या करते, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ 3 and 7, 4, so it will become 4/7, or you can see it is there are 4 green and we can write 4/7 there. Similarly इधर भी वही आ जाएगा, 3/7 and 4/7। ये हमने किया विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक चीज़ हमने निकाल ली, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एक बॉल निकालने से दोबारा वाली बॉल जो आनी है उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जो एग्जामिनर ज़्यादातर चेक करता है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, ये तो बहुत ही अच्छा। इसमें इसको करने के बाद वो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि वो आपसे कहेगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ रेड एंड येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड येलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड येलो। ठीक है, अब देखो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड येलो, देखो पहले रेड फिर येलो, एक सीक्वेंस है उसने दी हुई हमें, उसको हमने देखना है। ठीक है, ये देखिए इंटरलिंक्ड है वो। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले रेड की बात की तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे जी प्लीज़। जब हम इस तरह ऐसे लिंक्ड रहते हैं ना आपस में, तो वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जब हम उसको छोड़ के दूसरी ब्रांच में जाएंगे तो फिर हम अगली वो जो बात आएगी उसको क्या करेंगे, वहाँ पे ऐड करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड येलो की बात हो रही है, रेड और येलो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, एक केस ये है, इसके अलावा अगर होता तो फिर वो प्लस करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे अगर इसके अलावा भी रेड और येलो कहीं होती तो, अभी यहाँ पे देयर इज़ अ सिंगल केस ऑफ रेड एंड येलो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इज़ 3/5 एंड द येलो इज़, येलो की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/7। सो इट इज़ 3/7। सो
इफ़ देयर इज़ एनी सिंप्लीफिकेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज़ देयर, तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन लीव इट एज आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 9/35, ठीक है जी। उसके बाद अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं जी। वो कहता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन। आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन हुबा? कैन यू सी वेयर इज ब्लैक एंड ग्रीन? हेयर इट इज 4/7। सो इट इज़ वेरी सिंपल सा भी मैं आपको करवा के इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ आ जाए, तो फिर हम आगे एडवांस लेवल क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छा जी, इसी तरह ब्लैक एंड येलो मुजम्मिल 3/7। सिंप्लीफाई तो आप कर ही लोगे सब लोग। सो ये था एक काम। अब हम आते हैं विद आउट रिप्लेसमेंट पे, ठीक है, विद आउट रिप्लेसमेंट। यस प्लीज, यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड येलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड येलो, प्रोबेबिलिटी रेड एंड येलो। जहाँ पे एंड आएगा ना वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और आएगा तो ऐड करेंगे, ठीक है, ये भी याद रखना है। एंड इन प्रोबेबिलिटी एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एंड जब भी यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और जब हम और यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे प्लस, ठीक है। ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट केस होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड येलो, कहाँ पे है प्रोबेबिलिटी रेड और येलो? आप देखो ज़रा अपनी टी डायग्राम में, ये रेड है, इसके साथ ये वाला येलो है जी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5, और येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रेड और ग्रीन अगर कहता है तो ये रेड है और ये इसके साथ ग्रीन, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो रेड और येलो या रेड और ग्रीन तो कह सकता है, लेकिन वो रेड, क्योंकि येलो और ग्रीन ऊपर भी ये रेड है, ठीक है, लेकिन वो ब्लैक और येलो जब कहेगा तो वो यहाँ आ गया, ये देखो, ठीक है। तो आपने देख लेना है, सारे समझदार बच्चे हो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करोगे तो आराम से क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी के, इजी है प्रोबेबिलिटी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ विद आउट रिप्लेसमेंट। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, इसमें आपके बहुत सारे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। सिंपल प्रोबेबिलिटी भी तो आती है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा मार्क्स का होता है, विद आउट रिप्लेसमेंट। जी, ओके, लुक एट इट। नाउ वी हैव अ बैग अगेन, एंड वी हैव 3 रेड balls, 4 blue balls and 2 black balls. We are going to pick 2 balls from the bag without replacement. इसका मतलब क्या है कि जब हम एक बॉल निकाल लेंगे तो उसको वापस नहीं रखेंगे, उसको वापस रिटर्न नहीं करेंगे बैग के अंदर। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ अब हम सारी यहाँ पे करेंगे जी। So how many colors are there? We have 3 colors: red, blue and black. ओके, सो ये वाली जो मैंने जहाँ पे शो करवाया ना, ये वाली जो पहली ब्रांच है इसकी, ये फर्स्ट बॉल के लिए है जी। फर्स्ट बॉल विच वी आर गोइंग टू पिक फ्रॉम दी बैग, if it is red, what is the probability of red? 3/8. The probability of first red is 3/8, and probability of first blue 3/8 again, and probability of black is 2/8. ये हमने क्या किया, ये हमने चूज़ की थी विद आउट रिप्लेसमेंट। अब हमने कर लिया काम। अगेन वी आर गोइंग टू पिक द सेकेंड बॉल। अब सेकंड के साथ रेड भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है, और ब्लैक भी आ सकती है, ठीक है। अब देखें जी,
यहाँ पे हमने केयरफुल रहना है. सो इट इज़ फॉर द सेकंड बॉल. सो इन द फर्स्ट इवेंट, इन फर्स्ट पिक, यहाँ पे फॉर दिस स्पेसिफिक केस, यहाँ पे हमने जब रेड के साथ दूसरी रेड को चूज़ करना है, तो अब हमारे पास एक रेड यहाँ से क्रॉस हो चुकी है जी. वो अब उसको हमने बाय निकाल दिया है. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि वापस नहीं रखी है हमने. नाउ हाउ मेनी रेड्स आर देयर? 2 एंड टोटल 7. अब हमारी रेड बॉल यहाँ से आउट हो चुकी है. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड रेड इज़ 2/7. अब एक बॉल हम बैग में से निकाल चुके हैं विच इज़ रेड, जो कि रेड थी उसको हमने क्या किया है, यहाँ से उठा दिया. इट इज़ आउट नाउ. अब हमारे पास बैग देखें. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द बैग नाउ? 7. और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू विद रेड? यानी पहली रेड आई है ना, उसके साथ ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो इट इज़ 3/7 बिकॉज 3 ब्लूज आर देयर. अब बैग के अंदर कितनी ब्लूज रह गई हैं? 3. टोटल कितनी है? 7. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू विद फर्स्ट रेड इज 3/7. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक? 2/7. वेरी गुड. ये बात अगर आप लोगों को समझ आ गई तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन वेरी सक्सेसफुली इन योर पेपर इंशाल्लाह. ठीक है जी. अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, अगर हमने पहली बॉल चूज़ की है वो ब्लू है, ठीक है, तो उसके साथ अब देखें जी, अब पहली बॉल हमने जो निकाली है वो है ब्लू. इसका मतलब क्या है? अब रेड हमारे पास पूरी हैं. अब यहाँ से अब रेड जा चुकी है जी, ब्लू जा चुकी है जी. हाउ मैनी ब्लूज आर लेफ्ट विद 2. तो अब ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7. रेड के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/7. एंड ब्लैक प्रोबेबिलिटी 2/7. अब हमारे पास थर्ड केस आ गया, रेड, ब्लू एंड ब्लैक. अच्छा जी, अब इसके साथ रेड, अब हमने ब्लैक निकाली है जी. ब्लू इज़ बैक, यानी ब्लू की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सॉरी, ब्लू. ठीक है. अब हमने यहाँ से निकाल दी है ब्लैक. अब हमने निकाल दी ब्लैक. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नाउ? 3/7. 1/7. ठीक है. So when you will be able to fill your tree diagram correctly, then you will be able to answer the remaining questions easily. So basic जो आपकी सारे क्वेश्चन की बिल्डिंग जो है, आपका क्वेश्चन है वो एक बिल्डिंग है, उसकी डिपेंडेंस किस पे होगी? आपकी टी डायग्राम पे. इफ़ यू विल कंप्लीट इट करेक्टली और यू विल ड्रॉ इट as a whole correctly, then you will be able to attempt the questions correctly. Now these are the basic concepts of probability which I have shared with you. Now I am going towards the past paper questions for the practice. I will explain you few questions and hopefully then you will be able to solve the questions of classified past papers yourself. Okay, so let's start the past papers. Excuse me sir. स्कैन करेंगे. अब वो कह रहा है जी, इन अ बॉक्स देर आर 7 रेड कार्ड्स, 3 ब्लू कार्ड्स. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट इज द प्रोसेस. ठीक है. सो एवरीथिंग इज गोइंग विदाउट रिप्लेसमेंट. सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज 3/10. The probability of blue is 3/10. Now one red is taken out of the bag. How many reds are there in the bag now? 6. 6/9. And the probability of blue will be 3/9. Similarly, probability of red. Now blue is taken out of the bag. How many blues are left now? 2.
So the probability of blue will be, for the second blue it is 2/9 and it will be 7/9. Now you can check here, the sum of all these probabilities is equal to 1. एक ब्रांच में जो इंटरलिंक्ड होती हैं इन सब का सम क्या होता है 1. सो नाउ लुक एट दी, अब देखिए इससे लिंक्ड क्वेश्चन है. इफ़ यू विल फिल द probability tree properly, then you will be able to get the answer, correct answer. Look at it. Work out the probability that two cards are of different color. Give your answer in as a fraction. अब देखिए पेपर 2 है, लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगा दी, यू हैव टू गिव योर आंसर इन अ फ्रैक्शन. इसलिए अब आपने कैलकुलेटर को यूज़ करके डेसिमल में कन्वर्ट करके नहीं आ जाना वहाँ पे, इसको फ्रैक्शन में लेके आना है. कैलकुलेटर फ्रैक्शन में भी आंसर दे देता है, फ्रैक्शन में हम खुद भी निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कलर्स. अब देखें डिफरेंट कलर आपको कहाँ कहाँ पे नज़र आ रहा है. रेड एंड ब्लू इज़ डिफरेंट एंड ब्लू एंड रेड इज़ डिफरेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर, 3 over 10 मतलब 3 over 9. yes, probability of different color is equal to, so the probability of first red and blue 7/10 multiply 3/9, 7/10 multiply 3/9 plus, now probability of blue and red, in that case these are also different, so probability of blue is 3/10 and multiply probability of red with it is 7/9. Now we will be simplifying this fraction. Okay, is it possibility of cancellation? Yes, 1/9 is there, so we can write 7/30 plus this will also cancel, so again we will get 7/30 and it will give us 14/30. 14/30 will become 7/15. The probability that it will rain today is 1/3 and probability that it will not rain today, Ashir, is 2/1. आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 minus 1/3 is equal to 2/3. Okay, look at the next part. If it rains today, the probability that it will not rain tomorrow is 2/5. देखें जी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अब वो कह रहा है अगर आज बारिश होती है, ठीक है, इफ़ इट रेन्स टुडे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज़ 2/5. नाउ वी विल बी फिलिंग द प्रोबेबिलिटी ट्री यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव. If it does not rain today, the probability that it will rain tomorrow is 1/6. If it rains today, the probability that it will rain tomorrow is 2/5. If it does not rain today, the probability that it will rain tomorrow is 1/6. Keep this information in your mind. It is written as you can see in the question as well. Now we are going to fill the probability tree. So the first thing is about today. Ikram, आपने कुछ नहीं बताया आज. Ikram, what is the probability of rain today? 1/3. And what is the probability that no rain? 2/3. अच्छा जी, अब इसको हमने ध्यान से फिल करना है. अच्छा, if it rains today, the probability that it will rain tomorrow is 2/5. यानी अगर आज रेन हुई है तो कल भी रेन हो, what is the probability of it? Huzaifa? 2/5 given. 2/5. ठीक है. अच्छा ये देखें जी, इफ़ इट डज़ नॉट, अब देखें रेन टुडे की बात हो रही है. जब आज रेन हुई कल भी रेन होगी तो 2/5. और कल रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5. सो इट विल बी 3/5. 3/5 is not mentioned in the question. Here we will be using our common sense. Now, if it
does not rain today, the probability of it is 2/3. Then what is the probability that it will rain 1/6. tomorrow is 1/6. So what is the probability that it will not rain tomorrow? 5/6. So when you will be able to fill this information correctly, then you will be able to get the answers correctly. So find the probability that it will rain on at least one of these 2 days. At least मतलब या तो दोनों दिन बारिश हो या दोनों में से एक दिन बारिश हो. दोनों, एटलीस्ट का वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब, ठीक है, या एटलीस्ट मतलब 2 दिन भी या 2 से कम भी हो सकता है या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है ऐसा. द आंसर फॉर दिस केस इज़ दोनों दिन बारिश हो. इसमें हमारे पास जो आना है ना, दोनों दिन वाला भी आना है, ठीक है, और एक दिन भी बारिश वाला आना है, ठीक है. अब पहली नो रेन, दूसरी रेन, ये भी आएगा, ठीक है. नो रेन नहीं आएगा, यानी पहले दिन भी बारिश ना हो और दूसरे दिन भी ना हो. अब इसमें हमने क्या करना है, देयर आर 2 वेज टू सिंप्लीफाई इट. एक तो हमें क्या करना है, या तो वो प्रोबेबिलिटी निकालो जब दोनों दिन ही बारिश नहीं हुई, ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी को निकाल के 1 में से माइनस कर दो तो तीनों दिन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. बाकी तीनों केसेस जो कि वो प्रोबेबिलिटी उसके इक्वली होगी, ठीक है. सो देयर आर 3 केसेस विच आर गिविंग रेन एट लीस्ट ऑन 1 डे, ऑन 2 डेज. अच्छा, यहाँ 2 डेज़ की बात हो रही है, ठीक है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एट लीस्ट 1, अच्छा 1 ऑफ द 2 डेज, यानी कि एक दिन बारिश हो, फिर दोनों भी शामिल हैं उसमें, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑफ एट लीस्ट 1 ऑफ द 2 डेज इज़, देयर आर 2 मेथड्स टू सिंप्लीफाई इट. एक तो बेटा ये है कि हम क्या करें, केस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन, दोनों दिन बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई 5/6. 1 माइनस इसको इसके साथ कैंसिल करें और यह आ जाएगा 5/9 एंड इट विल गिव अस 4/9. 1 केस इज़ दिस, ठीक है. इट इज़ शॉर्टकट. एंड केस 2 इज़ कि जहाँ पे हमारे पास 2 दिन बारिश हुई है वो भी, जहाँ पे हमारे पास 1 दिन बारिश हुई है वो भी, वो तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. तो दूसरा केस क्या होगा, हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/6. 5/6 तो दोनों नॉट रेन वाले हैं, ठीक है जी. सो इट विल बिकम 2/15, इट विल बिकम 3/15, इट विल बिकम 1/9. अब व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 15, 15 and 9? You can check it. So 45 is the LCM. 45 divided by 15, 3, 6. 45 divided by 15, 3, 9. And 45 divided by 9, 5. Multiply 1, 5. So it will give you 15 plus 5, 20/45. And it is 5 for the, and it is again 4/9. You can see both questions, both methods have given us the same answer. Case 1, you know the probability of all the events is equal to 1, ठीक है. अब यहाँ हमारे पास 2 इवेंट हैं. एक है कि एक दिन बारिश हो रही है, एक दिन नहीं हो रही, ठीक है. ये 2 हैं ऐसे. कौन कौन से वाला, ये बारिश हुई नहीं हुई, बारिश हुई नहीं हुई, 2 ये हो गए. और एक वो है जिस दिन दोनों दिन बारिश हुई. ये वो 3 ऐसे केस हैं जिनमें एटलीस्ट 1 ऑफ, जैसे उसने जो कंडीशन हमें दी है, इट विल रेन 1 ऑफ ओनली 1 ऑफ द 2 डेज़. ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं.
उनको हमने ऐसे किया मल्टीप्लाई तीनों को, तो ये हमें मिला 4/9। केस 1 में ऐसे हुआ कि हमने वो केस ले लिया, बिल्कुल उसके एक अपोजिट केस ले लिया कि दोनों दिन ही बारिश ना हो। उसकी प्रोबेबिलिटी है ये 2/3 मल्टीप्लाई 5/6। ठीक है, इसको जब हम 1 से माइनस करेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा जो इन तीनों को यहाँ पे एटलीस्ट 1 वाली बात हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसे दोनों तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो, आप यू कैन अटेम्प्ट दी। सेकेंड पार्ट इज़ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन ओनली वन ऑफ दीज 2 डेज। पिछले में उसने कहा था इट विल रेन ऑन एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 डेज, उसमें क्या था कि एक दिन हो एक दिन ना हो, वो वाला केस भी आएगा, और दोनों में जिसमें होगी बारिश वो भी आएगा। अब इसमें उसने कहा दोनों में से एक दिन बारिश हो। अब इसमें सिर्फ ये वाले 2 केस हैं हमारे पास, इसमें और इन दोनों को पास, सिंपल। ठीक है, क्या करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/6। सो इट विल बिकम 3 से काट दें 1/5 प्लस ये इससे कैंसिल कर दें 1/9 45 LCM 9 प्लस और 45 9 5 और ये हो जाएगा 14/45। ठीक है जी। LCM is used there।